Okay, it's okay. Uh, Good evening to everyone. On behalf of Satyashodak Academics, we invite you all for today's discussion, uh, uh, which is a part of the series of lectures that we are conducting on Dalit food cultures. The 4 months back, we called for papers on Dalit food culture. We have received many papers across India, even from abroad, both from young scholars and senior scholars. And we are engaged in editing two volumes on Dalit food cultures, one from the literary perspective, another from the social science perspectives. In a way, we are happy to share that Sahu Patole's recent book. This is the book. You might have seen all the people. This is one of the very unique book that really brought the insights. And the translation is also, Sir is showing. This book is now getting into translated in Telugu, Kannada, Malayalam, and Tamil. many languages, and it truly inspires the new generation of scholars and even senior scholars to engage in this field. Though there are Dalit studies produced a lot in social science and the literary domains, but particularly in the domain of food culture, we have very little literature. We don't even find except one or two articles and around beef and so on and so forth. So Sahu Paltrole's work really inspired us, and we took inspiration. So we thought that there is a need to seriously engage and explore these Dalit food cultures, in particular subaltern food culture in general. So we thought up to when we issued myself, Professor Chandraya Gopane and Dr. Anand Kumar, when we planned to call for papers, we thought that we have to cover the wide range of issues, not only veg versus non-veg. We have to really bring the regional diversity in food culture, and the from Christians like how modern food practices are taking place among the Dalit middle class or traditional families, and so on and so forth. So we have received very good papers, and we hope these volumes will really help us. And we so far we have organized many lectures that we have uploaded to Satyashodak Academic YouTube channel. You can watch it. I think this is the 13th lecture in this series, and we are close to conclude this series of lectures. We thought of that Sahu Patole sir will really help us to get uh, a wide range of experiences. These experiences, observations, is a struggle to document this Dalit food culture, particularly from Maharashtra, really help us to enrich our papers and study. So, when I called Sahu Patole sir, immediately he accepted, and he said, I will be very happy to interact with the group of people. A new generation of people should focus on this. So he immediately gave his permission. He emailed me, and that's how we are with Sahu Patole sir is with us. And we are happy and we are very thankful, sir, for your presence in online. And now I formally invite Dr. Anand Kumar, who is a editor of the ongoing volumes, to introduce formally Sahu Patole. Thank you very much. We are recording this presentation. Later, we will upload to the YouTube for the wider audience. We are also on Facebook Live. On Facebook, people are also watching, and this is for your kind
information. Thank you, Anand. So thank you, Professor Gopani ji. It's really a great honor for me to introduce such a luminous, great personality, though I am very tiny scholar. And it is a great responsibility on my shoulder now to introduce Sahu Patole ji. Though Sahu Patole ji need no any introduction, formal introduction, but as a formality, I am here to introduce Sahu Patole ji. So for the first time when we are thinking about this lecture series, we were engaged or we were surprised to see that there is totally scarcity of Dalit food culture except one book that was Sahu Patole sir's book, Dalit Kitchen of Marathwada. So I was very happy to read this book and it was really a great learning from that. So it's really a great privilege for me to interact with such a scholarly person. So I'm happy. So Sahu Patole, sir, as you all know, is a pioneering voice in Dalit food studies in contemporary India. So साहू पटोले सर को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं इस तरह से तो शायद ज्यादा बेहतर होगा कि साहू पटोले सर केवल एक स्कॉलर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक पैशनेट और कंपैशनेट वॉइस के साथ उनका चेहरा उभर के सामने आता है और जो अपने इस सब्जेक्ट में एक महारत हासिल किए हुए हैं. सो इट्स रियली वेरी enriching experience he is going to share with us. So Sahu Patole sir has given us a lens, a nuanced method to see food not merely as sustenance, but as a living archive of memory, resilience, and resistance. His work, though, is very gently, but has a very powerful or gave a challenge to the silences that has been there in the mainstream food studies or food writing in India or across the globe. Because when we talk about food studies, we hardly see any voice among the marginalized, particularly Dalit food cultures. There is no voice. Though there has been some researches on food studies, but regarding Dalit food culture, there is very rare. So in this way, it's very enriching experience for to read such a great book by Sahu Patole sir. So Sahu Patole sir, born and raised in Marathwada region, especially coming from Mang community, and he is not merely a scholar of this subject, but a very thoughtful practitioner and a deeply engaged voice from within the communities. So his work stands at a critical intersection of food studies, caste politics, and anti-caste historiography in India, recognizing that food is not merely a sustenance or nutritional fodder, but it has deeply charged with socio-political issues that we are going to discover. So Sahu Patole has also authored many books along with this, though these books are very rarely known in the publics. So one book is Bharat Jodo Us Wale Divas, which is in Marathi. Another is Puk Nalim, which is also in Marathi. And one more book is Khilaga, if I'm pronouncing well, because I'm not well in Marathi. So it's very great to have Sahu Patole ji with us. So please join me in welcoming Sahu Patole ji for this lovely talk or enriching talk. So the floor is to you, Dr. Sahu Patole ji. Thank you very much, sir. Sahu Patole ji. हाँ Yeah. yeah. So you can start now. I think it's a good time. So I have whatever I have researched about you. So I have given this brief bio about you to the audience. Now I think audience are well familiar with you, so you can begin with that. So thank you for your presence here, sir. सर शुरू कर दो. Yeah.
Please start. Sir, please start. Okay, myself. Yes, sir. Okay, it's okay. एक्चुअली मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर दूंगा. Okay, sir. हाँ, ओके. बिकॉज माय ये इंग्लिश इज बहुत नॉट स्पीकिंग इन सर, ये फ्लुएंट बहुत इंग्लिश. अच्छा होगा हमारे ऑडियंस के लिए, बहुत अच्छा होगा सर कि इसको बाइलिंगुअल रखा जाए, सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा. ये बहुत अच्छी बात है इंग्लिश सर. में तो आप मैं क्योंकि मेरा जो बुक है उसकी लैंग्वेज जो है मराठी में भी 30% वर्ड्स एब्सेंट है मराठी में. ओह, yes. मराठी बुक ट्रांसलेट हो किया तो 30% वर्ड्स एब्सेंट इन मराठी, बुकिश मराठी. ओके. Oh, that's it. Yeah, 30%. Not this is not little words. Okay. Second thing, मैंने जो बुक लिखी है वो इज अ डॉक्यूमेंटेशन है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है. क्योंकि मैंने बुक में भी लिखा है कि दलित लिटरेचर जब 70s में आना शुरू हो गया तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है. उसमें दलित लिटरेचर में फूड के बारे में सिर्फ मार्क्स आते हैं कि हाँ ये है ये है ये है, लेकिन उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसका पूरा ये नहीं आता है कि क्या कहते हैं उसको. बुक उसमें जो लिखा है, चाणी लिखा है, बोटी लिखा है, वजरी लिखा है, उसका उसका पूरा लिखा नहीं है कुछ भी. सिर्फ वो बुक में आता है और चला जाता है. दली, बोटी, चाटी या फुफ्फुस, वजडी, रक्ती, देन फाशी, देन बोका, काळीज, उंडवर. Too many words in दलित लिटरेचर. बट किसी भी दलित लेखकों ने उसके बारे में डिटेलिंग नहीं किया है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा. डिटेलिंग डिटेलिंग. अच्छा, आप बोलोगे मराठवाड़ा क्यों है मराठवाड़ा? बिकॉज इन कोकण beef is till date also beef is absent in Konkan area. My book subject related to Khandesh, some part of Vidarbha, some part of Western Maharashtra, near about some part of then Marathwada, total Marathwada, then Telangana and northern Karnataka and Andhra. The same food culture all this year because jawar rotis and jawar rotis and ragi all till date आज भी लोग खाते हैं. तो मेरा जो बुक है वो सिर्फ मराठवाड़ा पे नहीं है, सिर्फ कोकण पे, कोकण में नहीं, कोकण में मांग कास्ट नहीं है. एंड सेकंड थिंग, आई एम बिलोंग फ्रॉम ओल्ड हैदराबाद स्टेट. सो आज भी हमारे यहाँ पे वही खाना चलता है मैक्सिमम. गांव में, शहरों, अभी शहर के लोग बिगड़ गए हैं, शहर के लोग नहीं खाते हैं. तो कुछ लोग नहीं खाते हैं, शहर के लोग बहुत बिगड़ गए हैं, वो सुधरे नहीं है, वो ट्रेडिशनल फूड ने छोड़ दिया उन लोगों ने. तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है क्योंकि मेरे बच्चों को पता नहीं है कि हम क्या खाते थे, मेरे मैं और क्या खाते थे, क्योंकि हम शहर में आ गए ना. इसलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं किया है, टिप्पणियों किसी के ऊपर मैंने उसको ब्लेम नहीं किया है. लेकिन जब ब्लेम तो करना पड़ेगा तो वो तो किया है, लेकिन इतना नहीं किया है कि उसको कोई कोई हर्ट हो जाए. तो एक तो ये हो गया. सेकंड थिंग, इसमें जितने रेसिपीज है वो आज भी मैं करके खाता हूँ. अगर अवेलेबल समझो कि ब्लड ब्लड अवेलेबल होता है
तो आपको आज भी मैं आपको रिसिप्ट उसको बना के दे सकता हूँ, इफ अवेलेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिग्लोटिस है वो तो अवेलेबल होता है कभी कभी। जस्ट किडनीज है, और जैसे लंग्स है, या जैसे टंग है, तो वो अवेलेबल है आज भी। लेकिन कोई खाना नहीं चाहिए, सबको सॉलिड मीट चाहिए, किसी को भी पेरिसेबल ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं उसको, सस्ता वाला जो मीट है वो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी न्यू ट्रेडिशन आ गया है, अभी लोगों को बोटी खाना है, बोटी मीन्स इंस्टेंटाइन्स खाना है लोगों को, और वो आजकल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। जब आफ्टर कोरोना, वो बकरे का पैर होता है ना, यू नो लेग्स, पैर को क्या कहते हैं, पाया, पाया, जो पाया फ्री में मिलता था ये 50 रुपीज में, अभी वो एक वन 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 लेग 50 रुपीज हो गया है, मतलब 200 रुपीज में 4 लेग मिल रहे हैं। कपूरा, कपूरा, कपूरा मीन्स वो क्या कहते हैं उसको उसको कपूरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई थिंक कपूरा को कहेंगे बॉल्स, जो होते हैं ना, वो बकरे का जो बॉल्स होता है ना, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। वो भी महंगा हो गया है, मतलब हर चीज महंगा हो गया है, जो जो मतलब सस्ता था वो गरीब का अनाज महंगा हो गया है। फूड से लेकर पीएम ने बोल दिया, पीएम जी ने बोल दिया कि आप मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, गरीब का मिलेट्स महंगा हो गया। अभी ऑयल मत खाओ बोल रहे हैं, तो हम गरीब को, हम आपको ऑयल मिलता है नहीं था, आपको 72, 75, 1975 मिलता नहीं था, आजकल वो भी महंगा हो गया है। मतलब हम जो खाते ही नहीं थे वो भी मत खाओ बोल रहे थे, क्या करेंगे गरीब लोग, हम लोग ना। तो ये मेरी सोच है खुद की, ऐसा, मतलब ये मत खाइए, वो मत, वो खाइए। अगर हम लोग सेंद्रिय फूड, सेंद्रिय क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, मिलेगा कहाँ से? वो बहुत महंगी चीज हो गई वो। कोरोना में जो लोग अंडा नहीं खाते वो लोग अंडे खा रहे हैं, वो लोग तब से, जो अंडों को हाथ लेते नहीं थे। आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज आपको बोल दिया ना कि ये दवाई है, तो आप, आपके लिए अंडा भी दवाई है, मीट भी दवाई है, ब्लड भी दवाई है। वो सिंपल थिंग है। अच्छा, मैंने जो बुक लिखी है वो, उस बुक में जितनी रेसिपीज है, जितनी, वो सभी मैंने खाई है, मैं बना सकता हूँ। आई एम रनिंग 64 ईयर्स, तो मैंने ये सब कुछ झेला हुआ है, खाया हुआ है, देखा हुआ है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। मुझे अच्छा लगे, कोई क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्वेश्चंस आएंगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि अब मैं आगे एक तरह से बात करता रहूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आने चाहिए। सर आपका कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हम Q&A सेशन लगाते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, ऑडियंस के साइड से क्वेश्चंस लेते हैं। तो अभी आपकी बातें मतलब हो जाए ओके, ओके, उसके बाद शुरू इट्स ओके, आई एम विद इन 5 or 6 minutes, आई एम ओवर माय सेशन, ओके। बुक, मराठी में बुक आके हो गया 11 years हो गया, 11 साल हो गया है। मराठी में कहीं में भी उस बुक पर कोई लिखे कुछ, बहुत 2-3 आर्टिकल लिखे हैं, किसी ने भी उसके ऊपर, अभी भी कोई लोग लोग पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शर्म की बात है पढ़ना भी। पहली बार 2016 में जब शांता ने लिखा मिरर में, इंग्लिश में, तब 2 साल तक बहुत आर्टिकल आके गए। हरपरम में आने के बाद फिर अभी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आ गई है। लेकिन इसलिए मैं आजकल मराठी मीडिया को बोलता हूँ कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, बुक पढ़ लीजिए, आप बात खत्म। आप और मैं क्या बात कर सकता हूँ? आपसे मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप मराठी नहीं है, आप आपने इंग्लिश पढ़ी है। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो उसका उसके में जाऊंगा, मराठी में कोई भी क्वेरीज बनने दो, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, लेकिन बात नहीं करनी है। क्योंकि देखिए,
महाराष्ट्र में जो गांव होते हैं ना, उसमें दो गांव होते हैं, एक गांव कभी नहीं होता है। एक होता है गांव सब अपर कास्ट का, एक होता है शेड्यूल कास्ट का। इसके बिल्कुल एक गांव में दो गांव होते हैं। रात हो गई तो आप अपने घर में चले जाओ, अपने गांव, आप अपने एरिया में चले जाओ। तो वो जो गेट होता था गांव का, उसके बाहर की बस्ती हमारी थी, अंदर की आपकी थी। कोई झगड़ा, कोई आता है हमला करने के लिए, तो पहले हम झेलेंगे, फिर उनका बचाव भी हम करेंगे। तो इसलिए एक गांव में दो गांव, जैसे घेट्टो जो यूरोप में था, जूस के गांव जैसे बाहर थे ना यूरोप में, वैसे ये भी सिस्टम था, लेकिन इसको एक धर्म का नाम दे दिया और वहां रख दिया। दिन में आप गांव में जा सकते हो, रात में नहीं जा सकते। नहीं, आज तो बदल पूरा चेंज, सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन ये यही सिस्टम था गांवों का। ये भी एक शोषण की प्रक्रिया थी, धर्म के नाम पे, सिस्टम के नाम पे। ये एक आपके ऊपर में लादा हुआ था। और जैसे मरे हुए जानवर उठाया नहीं तो भी आपको सजा होती थी। जैसे हड़की हटाओ, जैसे अभी साउथ में माला मादी का में झगड़ा है ना, वैसे यहाँ पे भी है मांग महार। अभी ये जो आया है ना अ, कि कास्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यहाँ वही झगड़ा फिर से बढ़ गया है। एक्चुअली नहीं होना चाहिए। सबके विचार के पीछे बाबा साहेब भी है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, दोनों तरफ से बहुत बढ़ गया है ये प्रकरण अभी अ, उसको बोलते हैं जातीय उपवर्गीकरण, ABCD जो किया है ना। मतलब अभी ये तो फिर से एक बार, अभी मैंने आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, मैं बहुत ट्रोल हो रहा हूँ लास्ट 12 डेज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रोल होने का, क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं लिखा है मैंने। एनिमेशन बाबा साहब ने लिखा। और जो कास्ट थी वहां, वो सभी लोग बुद्धिस्ट हो गए 56 में। अभी फिर से एक नया चेंज शुरू हुआ है फिर से एक बार, कि आप अपनी कास्ट लिखो जो 56 से पहले थी। लिखने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अ, देखिए, कोई भी जो हम बात करते हैं, लिखते हैं सोशल पे, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग नहीं होता है। आपको कास्ट और खाने से आप अलग नहीं कर सकते। आप कास्ट और लैंग्वेज को अलग नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट और कपड़े को अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब एक के अंदर में एक कपड़े जैसी गूंथी हुई बातें होती हैं। तो ये अ, उसके ऊपर मैंने लिखा है। मेरी बुक फूड कल फूड कुक बुक नहीं है। और मुझे पता है कि हमारे फूड के बारे में जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको पता है, लेकिन उनको बात नहीं करनी है। और जो लोग महाराष्ट्र के बाहर है उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बहुत प्रॉम्प्टली आपने रिप्लाई दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रियली हम लोग तो अभी कुछ ही दिनों से स्टार्ट किए हैं इस सेशन को। तो बहुत अच्छा है कि आपने सारी चीजें हमको बताई और हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस रीजन में बहुत स्कार्सिटी है। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि जानते सब हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। बात नहीं करना है किसी। इवन जी, तो नहीं इवन जब नहीं, हम लोगों ने ये पूरा मेरे मेरे माँ बाप खाते थे, वो बताना नहीं है, लोगों को छिपाना है सभी। कितने छिपाए ना, तो जात छिपती नहीं है आपके, लोग जात ढूंढ लेते हैं। अगर मैं जनुआ पहन लूं ना तो भी समझ जाएंगे कि ये बंदा कौन है, उसको ढूंढ लेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ईजी है महाराष्ट्र में, तो सरनेम पढ़ लिया तो बोलते कि ये कौन है। लेकिन हम्म, आ, मैं वही बता रहा था आपको, आप नहीं दे शायद कि कोई भी एक सब्जेक्ट सिर्फ फूड नहीं होता है। स्टडी करनी है तो आप, वो सिर्फ एक फूड नहीं होता है, आपके लैंग्वेज से लेकर आप क्या खाते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे हमारी भाषा पे आज भी गाँव में लोग हंसते हैं, आज भी।
तो हमारी लैंग्वेज मतलब मराठी बोलते हैं लेकिन हंसते हैं लोग। इसलिए मैंने कहा कि मतलब मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है, आजकल मैं अच्छा बोल लेता हूँ जैसे आपके, लेकिन उनको मैं बोलता हूँ कि मेरी जो मराठी है वो आपको नहीं आती है ना, वो आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम ना, आपका प्रॉब्लम है। बिकॉज आई एम ए रिच, से मैं बहुत ज्यादा समृद्ध हूँ, मुझे मेरी भाषा आती है, आपकी भाषा आते हैं, मुझे दो भाषाएं आती है। मेरे बुक में जो वर्ड्स है 30% उनको नहीं समझ में आता, तो आपका मेरा उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। हम्म, वैसे खाने का भी है, हम जो कहते हैं वही रिच ही था, और वो जबरदस्ती थी, वो किसी ने लादा हुआ था, थोपा हुआ था, इसलिए हमको खाना पड़ा। उसमें से भी हमारे फोर फादर्स ने, उसमें भी लेडीज ने, उसमें भी कई सारे न्यू नए नए आइटम बना के रखे हैं, और उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, डेड एनिमल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो मिलता है उसको तो आप एक बार विचार करो, कम से कम टेस्ट तो करो। लोग बोलते हैं नहीं हम वो नहीं खाते हैं, क्यों नहीं करना, फिर आप मत खाओ, लेकिन आपका कास्ट छूटने वाला नहीं है, इस पर मैं फर्म हूं। बोलिए क्वेश्चन। जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे लोग पता नहीं क्यों बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि इतना आना 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 ये- आना, मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मुझे मेरे जी सर। भाषा की शर्म आती है, मुझे मेरे कपड़े की शर्म आती है, मेरे खाने की शर्म आती है। क्यों? सरप्राइजिंग है सर, इससे ज्यादा पैथेटिक और कुछ हो नहीं सकता। ये लादा हुआ है, ये हमने स्वीकारा नहीं है, चॉइस नहीं था हमारे सामने, सही। जिंदा रहने के लिए स्वीकारा हुआ है सब कुछ। इसकी मुझे शर्म जी। नहीं आती है, इनको शर्म आती है ना मेरे अपने खाने की, अपने कपड़े की, भाषा की। उन्होंने शर्मिंदा होना चाहिए कि ये हम गलत कर रहे हैं। आप वो मत खाइए, वो बात है, लेकिन हम वो नहीं खाते हैं ऐसा मत बोलिए कभी भी। हम वो नहीं खाते मीन्स आप बोल रहे हैं कि हम कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। हम्म, शर्म उनको आनी चाहिए कि जिनकी वजह से ये लादा गया, हम पर थोपा गया हुआ है, स्वीकारा हुआ नहीं है। जी। सात्विक खाना कहाँ से खाएंगे हम लोग, घी कहाँ से लाएंगे? घी नहीं था, जानवर नहीं थे, दूध दही नहीं था, अब जो छाछ देते वो लाना पड़ता था। ये क्या है कि जो मिला नहीं ना उसका अट्रैक्शन होता है लोगों को, जो मिला नहीं उसका अट्रैक्शन होता है ना। ऐसे जैसे सही बच्चे है। पिज्जा खाते हैं, पता नहीं तो मेरे बच्चे पिज्जा खाते हैं, मुझे पता नहीं पिज्जा क्या होता है। ये सब, मुझे मुझे उन लोगों से बहुत दुख होता है कि जो लोग अपने ट्रेडिशनल खाने के ऊपर में खुद को शर्म करते हैं, जो कि वो नहीं होना चाहिए। हाँ ये करो कि हमने वो छोड़ दिए, जितना बोल सकता है, लेकिन हम वो नहीं खाते हैं ऐसा मत बोलो। ये मान लो कि मेरे को खाते इसलिए मैं जिंदा हूं ना, जो उन्होंने खाया इसलिए मैं जिंदा हूँ आज। मैं क्या बोल रहा हूँ, खाओ करके मत खाइए आप, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी शर्म मत कीजिए कि ये खाना पड़ा, जिनकी वजह से खाना पड़ा उनको आप दोष दीजिए कि आपकी वजह से हमको खाना पड़ा। और सदियों से, एक कोई 10 साल 15 साल की बात नहीं है ये ड्यूटी थी, मेरे वजह उठा के लेके जाना ड्यूटी थी ये, धर्म जी का जी। काम था। आपको पुण्य मिलता था क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। इस जन्म में काम करोगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म मिलेगा। तो शायद मैंने पिछले जन्म कुछ अच्छे जन्म काम किया, इसलिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। बोलो। सो इट इज गुड सर, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक सवाल अगर ऑडियंस से भी ले तो ज्यादा अच्छा होगा, वो इंटरैक्टिव सेशन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। वो करो, इंटरेक्शन कम कर, इंटरेक्शन कम कर दो आप, सवाल आने दो तो मुझे मजा है, मतलब क्या कि देखिए आप लोग ऑडियंस है ना, महाराष्ट्र के बाहर के बहुत ज्यादा है, कुछ क्वेश्चन तो हो गया जी ना, मतलब शंका डाउट्स हो गया ना, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ से लगते थे। तो दिस इज माय लास्ट जनरेशन, मेरे बाद
कोई आपको बताएगा नहीं, ये मैं बताता हूँ। सही है सर, ये सही नहीं है सर। नहीं, और मैं कई लोग हैं उनको पता भी है कि उनको कैमरे के सामने नहीं आना है। सही है जो सर। कई मेरे जनरेशन के कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, उन्होंने खाया हुआ भी है, हम्म, उनको बताना नहीं है, लेकिन मुझे बताना है। जी सर। डिफरेंट इसमें है। नहीं, मुझे शर्म ये नहीं आती बहुत है। अच्छा, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आप इतना ओपन हार्ट होकर के बोल रहे हैं, सर जी बता रहे हैं, सो दैट कोई चीज डॉक्यूमेंट हो पा रहा है, डिस्कोर्स हम लोग तैयार कर पा रहे हैं। अगर आपने ये किताब नहीं लिखी होती तो इसको शायद किसी की नजर उधर जाती ही नहीं, और ये दलित फूड कल्चर जैसा कोई डिस्कोर्स शायद हम लोग खड़ा ही नहीं कर पाते आज तो। ये बड़ा सरप्राइजिंग है जब आप बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो शहर में रह रहे हैं वो बिगड़ गए हैं खास तौर से, तो ये बड़े आयरनी लोग नहीं सभी है, बिगड़े हुए हैं। लेकिन यही सच्चाई, तो यही नहीं नहीं, सच्चाई वो है विदेश हकीकत जाके बात। बोलते हैं, नो 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 नो, वो विदेश में जाके बात कर लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन ये इंडिया में, भारत में नहीं बोलते हो। सही है सही है। So, yeah, there are some questions in the chat box. सर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए। ओके ओके। ये संतोष संतोष दामोदरन जी हैं, बेंगलोर से, क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इनका सवाल ये है कि जब आप ये बोल रहे हैं कि जो भाषा, हम मान लीजिए कि भाषा को लेकर के दिक्कत आ रही है, या जो खाना हम लोग खाते हैं, तो वो चीज सामने वाला नहीं जानता हमारे किचन में क्या है या हमारी भाषा में क्या है, हम भाषा कौन सी बोलते हैं, वो सामने वाला नहीं समझ में आ रहा, तो हमारी खुद की वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सामने वाले की है ना, क्यों नहीं है। तो उस पे वो चाह रहे हैं कि कुछ आप उस पे इलेबोरेट कर सके, इसको कैसे समझा जा सकता है। क्योंकि जो चीज अभी हम लोग हिंदी में बातचीत कर पा रहे हैं, और सेम कंडीशन अगर हम किचन की डिक्शनरी उठा लें, दलित किचन की डिक्शनरी उठाते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो अपर कास्ट एकदम अननोन है, सवर्णा पीपल को कुछ नहीं पता कि दलित किचन में क्या होता है, दलित किचन कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है सारा चीज। तो उसको लेकर के वो जो बात है कि ये अगर नहीं जानते तो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारी प्रॉब्लम। तो इसको कैसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, ऐसा सवाल है। ओके, नहीं नहीं, मैं समझ गया। दो 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 चीजें हैं इसमें। एक तो आज भी गांव में, मैं विलेज की बात कर रहा हूँ, आपके बगल में कोई एक अपर कास्ट घर है तो आप उस किचन में, उसके घर में जा सकते हैं, किचन में नहीं जा सकते हैं। और हमारे घर में तो कोई आए, मतलब आते ही नहीं थे, बुलाए तो भी कोई ना आते थे। यस। इसलिए गांव के सिस्टम में, अगर गांव में 7 कास्ट है, 7 टाइप ऑफ कास्ट है, तो जो सबसे ऊपर जो है उसके वो जहां से हमको बचा हुआ खाना आता था ना, सबसे नीचे हम लोग सबसे नीचे थे। आज भी मेंटली हम सबसे नीचे ही है, वो छोड़ दीजिए, आई एम ऑफिसर देन पैसे आते हैं, लेकिन आज भी मैं नीचे हूँ, ये मत भूलिए कभी भी। हम्म, आपकी आज भी आपका सोशल स्टेटस नीचे ही है, ऊपर नहीं है। वहां से मतलब कौन से, समझो सबसे वो अपर कास्ट है, फिर उसके बाद एक है, उसके बाद एक है। तो अपने सिस्टम में खाने का टेस्ट, लैंग्वेज, कपड़ा, ये ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए ये किसी घर में हींग खा रहे हैं तो मुझे पता है कि वो क्या खा रहा है, क्या टेस्ट है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ आज भी किसी को पता नहीं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। इट्स ट्रू, गांव की बात कर रहा हूँ। language మాట్లాడడం ఇవన్నీ इसका పైన कारण ये है। పైకో हेलो। Professor Gopani ji, please unmute yourself. There's a disturbance. Yeah, please. क्योंकि अपने यहाँ पे कास्ट सिस्टम है ना, आज भी टिल डेट
फॉरवर्ड महाराष्ट्र में हमारे घर में कोई आके खाना नहीं खाता है। जेंट्स आएंगे लेकिन वो सिर्फ मीट मटन खाने के लिए, मटन महंगा हो गया है ना, 900 रुपीज केजी हो गया है वो बकरे का मटन। वो खाने के लिए जेंट्स आएंगे, लेडीज कभी नहीं आएंगे आज भी। तो ये आज भी काम टिका हुआ है ना, या किसी के यस। किचन में आज भी हमको कोई एंट्री नहीं है। शहर में हो सकता है मे बी अभी फ्रेंडशिप हो गया है, जैसे कि वहां भी एक और कस्टम होता है कि आप क्लास वन ऑफिसर है तो आप, मैं भी क्लास वन ऑफिसर हूँ, ठीक है, दिलीप ब्राह्मण, लेकिन वो खाने मतलब वो उसको आप कंपेयर मत कीजिएगा। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, विलेज सिस्टम की बात कर यस। रहा हूँ। आज भी हम कैसे क्या खाते हैं किसी को आज भी नहीं, एक अपर को दूर की बात छोड़िए, चमार को, हमारे यहाँ चमार होते हैं ना, ढोर होते हैं, चमार होते हैं, मुच्छी और चमार होते हैं ना, वो भी हमारे घर में नहीं खाना खाते हैं, जानते हैं, आज भी नहीं खाते हैं। बाकी बात छोड़ दीजिए, तो किसको गाली देंगे हम भाई? यस। सही। उनके घर में खाने के लिए बुलाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है आजकल, लेकिन वो मेरे घर में आकर नहीं खाना खाएंगे। जी। तो मेरा यही जवाब है कि आप सोच लो ऐसा क्यों आजकल अभी भी वही चल रहा है कल्चर। आजकल लोग चाय तो पीते हैं, पानी पीते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट का पावर है वो ऊपर से नीचे फ्लो हो सकता है, आ सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा। हम ऊपर का लोग जो है तो थोड़ा सा अभी जागरूक हो रहा है मैं वो हमेशा जोक बताता हूँ। मैं हमेशा मैं एक जोक बताता हूँ। मेरे गांव में ओरिजिनल जो शेड्यूल कास्ट कास्ट है ना, वो चार ही है, फैमिली महाराष्ट्र की बात कर, चार ही है। बाकी सब लोग गुस्सा है। एक है चमार, और ढोर सबसे ऊपर होता है, ढोर मोची, ढोर चमार, 56 से पहले के महार, देन मांग। ओके, जी। इसमें मांग को ये ऊपर के तीन कास्ट नहीं नहीं छू के लेते थे, अनटचेबल्स थे। जैसे मांग है, उसको उस वक्त के महार, चमार और ढोर अनटचेबल मानते थे, अनटचेबल्स। उसके बाद मांग और महार को ढोर और चमार अनटचेबल मानते थे, और ये हम्म। चारों कास्ट अनटचेबल्स है गांव के लिए। ओके, ओके, ओके। बहुत प्रॉब्लम, मतलब वो आज भी वो दिमाग में ऐसे को वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ कोई बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ, इतने फर्क। तो वेरी लवली सर, ये बहुत अच्छा है कि आप ये सारी चीजों को बहुत बखूबी समझ पा रहे हैं और उन चीजों को नई हम जैसे जनरेशन को आप एक नया डिस्कोर्स दे रहे हैं, नई रास्ता खोल रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपके जरिए हमें एक थोड़ा सा स्पेस मिल पाया काम करने का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम लोग काम तो बहुत पहले से सोच रहे थे, लगभग पिछले 1 साल से इस पे करना सोच रहे थे, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट और भी काम थे जिसमें हम लोग एंगेज थे। लेकिन अभी रिसेंट से पिछले 4-5 महीने से हम लोग इस पे लगे हुए हैं। तो मैं और प्रोफेसर गोपानी जी इस पे जो है तो दो एडिटेड वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं। तो उसी चीज के लिए हम लोग लेक्चर सीरीज भी चलाए कि वो एक वाइडर ऑडियंस के लिए एक अच्छा डिस्कोर्स तैयार हो पाए, एक आर्काइवल मेथड बन पाए दूसरों की स्टडी के लिए। तो इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर ऑडियंस के साइड से। एक सर सर प्रॉब्लम नहीं। सर, मेरा नाम अमित सिंह है। या सबसे अमित जी पहले प्लीज। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ये किताब लिखने के लिए। और मुझे ये लगता है कि आपकी ये किताब लिखने से एक नया डिस्कोर्स शुरू हो गया एकेडमिया में, और ये डिस्कोर्स बहुत आगे तक जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद ये किताब लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि दलित फूड जो अधिकतर जो है डेप्रिवेशन से मतलब निकला है। जो भी चीजें हमें, जो चीजें नहीं थी, हमने वो चीजों को एज अ रेसिपी बनाया जो नेचुरली अवेलेबल थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, हिस्टोरिकल सफरिंग को एज अ कल्चरल हेरिटेज सेलिब्रेट करना, ये अनइंटेंशनली जो है स्ट्रक्चर वायलेंस ऑफ कास्ट है, उसको जस्टिफाई करना नहीं है।
दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाता है, मतलब कास्ट सिस्टम में जो भी है, कोई भी चीज़ है, कपड़ा हो, खाना पीना हो, सब ऊपर से नीचे जाता है। पर मैंने अपने रिसर्च पेपर में ये देखा कि थोड़ा बहुत अब इसका उल्टा भी हो रहा है। जैसे कुछ फूड ले लीजिए, जैसे कि मिलेट्स ले लीजिए। मिलेट्स पहले जो है था मतलब मुख्यतः उन लोगों के पास सीमित था जिनके पास खेत नहीं था, ये लोग कहीं भी उग जाता था तो वो लोग खा बना लेते थे। पर अब मिलेट जो है इतना महंगा हो गया या फिर अफोर्डेबल नहीं रहा है। ये मिलेट बस अमीर लोगों के लिए या कहिए कि अपर कास्ट के लोगों के लिए सीमित हो चुका है। तो ये एक मोबिलिटी जो है, मतलब उल्टा मोबिलिटी है, जो नीचे का फूड है ऊपर जा रहा है। ऐसे ही जैसे पाया होता है, बकरे का पाया हुआ, और भी चीजों का जो पाया है, जो और भी जानवर हैं, अब ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में एज अ लग्जरी फूड सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। जैसे हमने एक सर्वे किया था नोएडा में, जो पिग होता है, जो इसे सुअर बोलते हैं, उसकी कई रेसिपीज हैं जो दलित कम्युनिटी खाती थी। बट उसी रेसिपीज को नोएडा में क्या किया उन्होंने, रेस्टोरेंट में मतलब प्रेजेंट किया, और वो बहुत महंगे दाम पे बिकती है। बस डिफरेंस ये है कि उन्होंने उसके पीछे उसकी मेमोरी हटा दी है कि ये खाना जो है पहले दलित लोग खाते थे और ऐसे बना के खाते थे। तो उसकी सोशल मेमोरी हटा के उसी खाने को, जो दलित रेसिपी थी, उसको रेस्टोरेंट में प्रेजेंट किया जा रहा है, और वो बहुत बहुत महंगा है। तो ये जो मोबिलिटी है जो नीचे से ऊपर जा रही है, इस पे मतलब आप क्या देखेंगे? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछे। पहली बात यह है कि मैं मिलेट्स की बात करता हूँ। हमारे खाने में कभी भी गेहूं नहीं था, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में चावल नहीं थे, सिर्फ मिलेट्स ही थे। जो गरीब का अनाज था, एक उसको इंग्लिश में मैं भूल गया, उसको क्या कहते हैं, कुलगा, वो नाम का एक अभी भी है वो। जो जो चीजें हम खाते थे जबरदस्ती से, वो सब महंगी हो गई है पिछले 2014 से, जब से देश आजाद आजाद हुआ है। ओके, सबको महंगा कर दिया है। सब महंगा हो गया है अभी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप मिलेट्स खाओ। अब मिलेट्स उगते कहाँ से हैं? जो ज्वार हम 3 टाइम खाते थे, अभी वो ज्वार का रेट 60 रुपीज केजी हुआ है, जो कि अभी पिछले साल में 20 रुपए केजी था। मिलेट्स खाइए। जो क्या हुआ है कि ये डॉक्टर लोग जो है ना बताते हैं कि ये खाने से आपको हार्ट हार्ट अटैक नहीं आएगा, मरने तो सब वाले हैं, लेकिन आप बहुत जिंदा रहेंगे वगैरह, ये खाइए वो खाइए। इसलिए मिलेट्स महंगी हो रही है। एक करड़ी सैफलॉवर एक तेल आता है, सफोला जिससे बनता है ना, सबसे सस्ती चीज थी तेल की हमारे लिए, हम वही खाते थे। अब इतनी महंगी हो कि हम उसको, कोई भी गरीब आदमी उसको नहीं ले सकता, जो गरीब का खाना था। अभी लोग गेहूं देके ज्वार लेके जा रहे हैं, आप गेहूं खाओ, हम ज्वार लेके जाते हैं। ये फैक्ट है, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि पाया पाया क्यों महंगा हुआ। कोरोना में कहा कि पाया खाओगे तो आप सुधर जाओगे, तो लोगों ने पाया खाना शुरू कर दिया, तो गरीब का आना चला गया। मैं वही बता रहा था, इनको पहले बताया मैंने। जो पाए 50 रुपए में 4 पैर मिलते थे एक बकरे के, अभी वो 200 रुपए में नहीं मिल रहा। बुकिंग करना पड़ता है अगले दिन पहले दिन जाके कि आप भाई 4 पैर कल रख ले, मैं लेके जाऊंगा। इंस्टेंट की बात, ब्लड की बात कर रहा हूं मैं। तो ब्लड का वही हुआ है, जैसे इंस्टेंट है, वो महंगा हो गया है मटन मीट से, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब देखिए, ये आप ये खाने से, और वो सब खरीदने वाले जो है वो आम आदमी, गरीब आदमी के हाथ से सब कुछ चला गया है, लेकिन वो खुश क्यों है, उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम नहीं कहूंगा इसको, ये अपप्रचार, प्रचार नहीं कहता हूं, अपप्रचार हुआ है कि ये खाने से आपकी सेहत बदलेगी, आप बहुत ज्यादा जिंदा रहोगे, ये खाना अच्छा होता है। सेकंड थिंग, और एक उसमें बात जोड़ देता हूं मैं, लोगों को वो खाने के बजाय वो पोस्ट करने में अच्छा लगता है। वो मोबाइल पे जाके पहले वो प्लेट के फूड निकलता है, हमने ये खाया वो खाया, जबकि वो खाया नहीं, क्या किसी ने देखा नहीं है। लोगों को दिखाना भी है हम कुछ हटके खा रहे हैं। मतलब जो चीजें हम लोगों की थी, जो आम आदमी की चीज, आम के आम से भी नीचे हम लोग थे, हम लोगों का ये ट्रेडिशनल खाना था, वो महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। अरे इंस्टेंट का 200 रुपए केजी था क्या? बकरे का मटन 900 रुपए केजी हो गया है, वो तो ठीक है, लेकिन
300 तक जाएगा अभी ये, क्योंकि देख कलेजी कितना होता है, इतना सा कलेजी होता है, एक पाव भी नहीं होता है बकरे का कलेजी की बात। तो मैं बड़े के कलेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा तो और सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इतना कलेजी होता है, तो इतना कलेजी दिन भर होटल में चलता कैसे, ये किसी क्वेश्चन नहीं आता है। इतना सा कलेजी एक बकरे का किसी होटल में दिन भर चलता है, उसके पीछे राज क्या है भाई? इंसिस्टेंट देखिए, एक बकरे का वजन जो प्रॉपर बकरा है 5 महीने का, 6, उसका वजन मैक्सिमम 30 केजी होता है। उसको छीलने के बाद में वो रहता है करीब करीब 12-15 केजी। इंस्टेंट निकाल दो तो वो निकलता है 3-4 केजी। तो दिन भर चलाए कैसे आप लोग? कहाँ से लाते हैं इतना? ये भी तो लोग, खाने वालों को पता नहीं है कहाँ से लाते हैं ये। हम बता सकते हैं, हम बताएंगे नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप जो इसमें बात कर रहे थे, आप लग्जरी फूड की बात कर रहे थे, ये लग्जरी फूड हो चुका है। और ये बनाया है अमीर लोगों ने। एक तो खाने के लिए बनाया है, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और दूसरा बनाया है फोटो निकालने के लिए। दो चीज है। तो शायद, अच्छा करडी की बात कर रहा था मैं, मोबिलिटी, वो तो इधर शिफ्ट हो गए हैं। और हम लोगों को अभी आजकल घी खाने का बड़ा ये होता है। हम घर में घी खाते हैं, हम अभी वो चिकन खाते हैं। ये फैशन है सब ये। देखिए, जिन लोगों को अ, घर में गोबर से पोतते थे ना, उनको फर्शी लगानी है। और जिनके घर फर्शी थी उनको गोबर से पोता लगाना है। यही सब बातें चल रही है, ये सब, ये डाइवर्सिटी है। और ये जिनके पास पैसा है उनके लिए ये है, जिनके पास नहीं था उनको ये नहीं खाना, क्योंकि शर्म आती है इसमें। शर्म की बहुत, अंडरलाइन करता हूँ, इसमें शर्म की बहुत बड़ी बात। जो हम खाते थे ट्रेडिशनली, मेरे फोर फादर्स, मेरे माँ बाप, उसकी हमको शर्म आती है। और जिन्होंने लादा है उनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो उसके साथ में उनको वो खाना है, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं उन्होंने कभी। हम लोग कोई नई चीज तो नहीं है। ब्लड खाओ, ब्लड, रक्ति बोलते हैं हम उसको। वो फॉरेन में जाके बोलते हैं वो ब्लड के खा लिया। अरे काहे का ब्लड के, यही रखता तो वही खा रहे हैं, सदियों सदियों से तो बोल रहे ब्लड के खा रहे हैं। वो नहीं खा, इंस्टेंट खा रहे हैं। टंग, जीभ होती है ना किसी भी जानवर की, वो कोई खाता नहीं था, हम लोग खाते थे। अब वो तो इतनी महंगी हो गई कि उसको बुकिंग करना पड़ता है टंग का। एपिग्लॉटिस की बात कर रहा हूँ मैं, उसको फांसी ही बोलते हैं हम लोग। ये सब चीजें है ना, ये सब फैसिनेशन हो गया है इस बात का। उनका 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 खाना नहीं था कभी भी, और हमारा खाना महंगा कर दिया इन लोगों ने, जो सस्ता था। तो तो सर क्या आप जैसे दलित फूड को डिप्रिवेशन के साथ साथ क्या आप दलित फूड को एज ए नॉलेज सिस्टम भी देखते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और भी चीजें हैं, इसीलिए मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहिए, फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं नहीं, अभी जैसे मैंने पावरफुल। बताया ना, तो शर्म आ रही है ना। छोड़ा क्यों? पहली बात तो, आपको आप पढ़े लिखे, आपने नौकरी कर ली, पैसा आ रहा है, तो ऐसे ही छोड़ा आपने, दिखाने के लिए कि हम वो नहीं खाते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं, खाने की शर्म आनी है ना। यहीं से शर्म आती थी कि ये लोग कुछ भी खाते हैं, इन लोगों को कुछ भी खाना पड़ता है, इसलिए इनको छुआछूत कर दो, इनको अपने पास मत रखो। अभी वही लोग भी खा रहे हैं, इसलिए हमारे लोग जो है, दलित लोग, वो बकरे, अब अभी थोड़ा नहीं हुआ है, कम हुआ है। पहले कोई टीचर वीचर है ना गांव में, तो हाथ में वो एक, पहले मीट लेने के लिए पन्नी पन्नी नहीं मिलती थी, वो 3 स्टेशन का डिब्बा लेके जाएगा। जाता हूँ, बोलोगा हाँ हाँ वो मैं मटन लेने जा रहा हूँ, वो बकरे का लाने के लिए जा रहा होता था। ये दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मेरा बहुत सीधा सा मन, मतलब मेरा खुद का सोच है, मेरे खुद का अनुभव है, मैं देखता हूँ गाँव में भी। आप बकरे का खाओ, आप रोज एक घी से नहा लो, आपकी कास्ट नहीं जाने वाली है, आपकी कास्ट वही रहेगी। ये प्रॉब्लम नहीं। सर अमित जी का एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये बात वो करना चाह रहे हैं जो मैं समझ पाया हूँ। अमित जी कह रहे हैं क्या इसमें ऐसा भी है कि जो दलित फूड कल्चर है उसमें एक तरह का नॉलेज छिपा हुआ है, बहुत हाँ, रिच है जैसे सर, नॉलेज में। हाँ, जैसे फूको कहता है कि जो भी नॉन डोमिनेट कल्चर होता है उनका पैरेलल एक नॉलेज सिस्टम चलता है।
हर सोसाइटी में। तो उसको मैं थोड़ा एंगल में लाना चाहता हूँ कि दलित फूड कल्चर को नॉलेज सिस्टम की तरह देख सकते हैं क्या, जैसे फुको कहता है कि हर नॉन डोमिनेट कल्चर एक नॉलेज सिस्टम होता है। आमिर जी, आप डेफिनेटली इस बात को सही कह रहे हैं कि बिना पावर पैनोप्टिकॉन का एंगल लिए हुए फूड स्टडीज उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा इस पर्टिकुलर दलित फूड कल्चर की बात करें अगर। समझ रहे क्या हमें जी क्या करना चाहते हैं, समझ गया। सेकंड थिंग कि सब अपने यहाँ पे सभी नॉलेज सिर्फ संस्कृत में था। जिनको संस्कृत आती थी उनके पास नॉलेज था, बाकी लोगों के पास नॉलेज नहीं था। तो ऐसा था तो फिर मुझे मुझे क्यों लिखना पड़ा, ये नॉलेज हमारा भी था। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं सर। नॉलेज था ना। मराठी की एक ही किताब है मराठी की। वो एक्चुअली मराठी मराठी नहीं थी, 2000 साल पहले प्राकृत थी, एक किताब लिखा था उन्होंने। ये किताब है वो, हालवाहनाची गाथा सप्तशती। एक ही किताब है, 2000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसमें दलितों का फूड भी है, शादियां भी है। उसके बाद इसमें मतलब सेक्स सेक्स भी है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं है 2000 साल के बाद में। तो अभी मैं मतलब उसका मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। तो आनंद जी, जो अमर ही ना, अमित अभी अमित जो बात, अमित जी, हाँ। तो कभी हमारे बारे में किसी ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आचू छोड़ दीजिए, हम निगलेक्टेड थे। इसलिए हम्म, अभी हमको ढूंढना पड़ेगा। मैं जैसे कि मैंने बुक में अपने पढ़ा होगा, लास्ट में 52 संत है मराठी के, वैष्णव संत। उसमें ढूंढा मैंने, मैं हमको ढूंढ रहा हूँ, हम लोगों को, उनको नहीं ढूंढ रहा हूं मैं। मतलब ब्राह्मण छोड़ के किसी भी जात के बारे में अच्छी बात नहीं है संतों की, भले ही वो संत किसी भी जात के हो। तो ये मैं जो ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, मेरे लोग कहाँ पे थे, यस सर। मेरा खाना कौन सा था। सो और ये जो सब, जैसे कि मैं कराटे के बारे में बोल रहा था, तेल ही नहीं था हमारे खाने में। तेल कब था? अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि तेल मत खाइए, तेल नहीं था हमारे। ऐसा बोलिए कि आप अपना ट्रेडिशनल खाना शुरू कर दो, तो हम फिर वही वहीं पे जाएंगे ना। यस हम लोग जो तड़का देते थे मीट को, वो चर्बी का ही था, तेल कहाँ था? तेल नहीं था। सॉलिड फैट रख दो, उससे तड़का ना, तो बोल दो कि आप वही तड़का शुरू कर दो कि जो पहले था। तेल था ही नहीं खाने में। आप मेरे बुक में पढ़िए, आपकी कहाँ है तेल? मेरे खाने, हमारे खाने में तेल है कहाँ? दलित फूड में तेल है ही नहीं है। अरे जो आदमी कपड़े नहीं है और क्या छोड़ेगा वो? अमेजन पे जो है चर्बी का तेल बहुत महंगा मिलता है सर। कौन सा? अमेजन पे, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे चर्बी का तेल, जो जानवर के चर्बी का तेल होता है, वो बहुत महंगा मिलता है। तो वो भी चीज अब कपलाइज हो गई है। वो तो हमारी थी ना पहले से। हम्म। वही तो थी हमारी, वही वही तो बोल रहा था मैं। वो तो वही तो हमारी थी, हमने छोड़ दी ना, इसलिए लोगों ने पकड़ लिया उसको अभी। ओके सर। हाँ। सर, एक एक ठीक है सवाल सर, और है। समझ गया। अमित जी आप कुछ बोल रहे थे, अमित जी बोलिए आप। हाँ। नहीं सर, समझ गया आपका सर पॉइंट, अभी मैं समझ गया। नहीं नहीं, सही में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं।
मैंने बुक में ये लिखा हुआ है मैंने कि ये हमारी चीज है तो हमने छोड़ दी और लोगों ने पकड़ ली उसको अभी बोलिए, क्योंकि हमको बहुत बड़ा बनना है ना। जी सर। बोलिए। तो सर यहाँ पे एक सवाल है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है नेहा जी के द्वारा। जी अ, बोलिए बोलिए। हालांकि हालांकि आपने जवाब इसको दे दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल ऐसा है कि आई डू एग्री दैट इनिशियली देयर वाज नो, ये कह रहे हैं शुरुआती दिनों में दलितों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं थी, क्योंकि एडवर्सिटी में वो लोग जी रहे थे, उनके पास बहुत ज्यादा आइटम नहीं थे। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम जब देखते हैं इस चीज को, तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी उनको शर्म आती है। तो शर्म की क्यों आ रही है, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क काम करता है क्या? वो इस बात पे बात करना चाह रही हूँ। देखिए गांव की, मैं पहले गांव की बात करता हूँ। गांव में कास्ट सिस्टम था है, लेकिन सभी के पास कोई चॉइस नहीं थी। फर्स्ट थिंग समझ लीजिए आप। खाना पकता है तब वो छुआछूत बनता है, बनता था, कब बनता है, किसके घर में पक रहा है। जैसे समझो कि मेरे माँ ने, मेरे दादी ने किसी को सब्जियां, कच्ची सब्जियां जाके दे दी अपर कास्ट को, तो कोई उसमें उसमें छुआछूत नहीं है। वो पकने के बाद छुआछूत शुरू होती थी, होती है आज भी। कच्चा दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझो कि मेरे फादर ने मीट ला के दे दिया बकरे का, तो उसमें छुआछूत नहीं है। छुआछूत तब होती है जब किचन में जाके पकेगा। दूसरा, चॉइसेस बहुत है ना। आप वो नेहा जी बात करी, चॉइस बहुत है ना आजकल। चॉइस किसके लिए है? जिसके पास पैसा है उसके लिए चॉइस है, जो नौकरी है उसके लिए चॉइस है। चॉइस है कौन सा? आजकल लोग बड़े का मटन छोड़ के वो डाइवर्ट हो गए हैं चिकन पे और बकरे के मटन या भेड़ के मटन पे। अगर यही चॉइस है तो फिर पनीर पे गए हैं लोग, पिज्जा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, या फिर और कहीं होटल में जाकर खाना खा रहे हैं। ये चॉइस है तो फिर है। उसकी शर्म की बात मैं जो बता रहा था, वो शर्म क्यों? क्योंकि मेरे जो, हम जो खाते हैं वो एक, क्या कहते हैं उसको, उसको कोई सोशल स्टेटस नहीं था। और हमारे घर में जो बनता है उसको कोई खाता नहीं है, वो भी सोशल स्टेटस, उसको भी सोशल स्टेटस नहीं है। मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि किसके घर में खाना बनता है उस पर डिपेंड करता है कि ये खाना अच्छा है, प्योर है, इम्प्योर है। बहुत सिंपल थिंग। हम्म। पैसा होने से कुछ नहीं होता, पैसा होने से इज्जत नहीं मिलती है, पैसा होने से, पैसा होने से आपका स्टेटस नहीं बढ़ता है। और सबको ब्राह्मण बनना है, ध्यान में लीजिए। लेकिन वो ब्राह्मण बनेंगे नहीं, कोई स्वीकारेगा नहीं। ये भी सही बात। ये भी मान लीजिए, पकड़ लीजिए मन में कि आपको ब्राह्मण बनना है, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। बोलिए। एक सवाल ऐश्वर्या जी की तरफ से है, जो कि मराठी में वो बात करना चाह रही हैं। ऐश्वर्या जी, इफ यू आर देयर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हम्म, Yeah, I'm here. Yeah. Hello. I'm Aishwarya. I'm doing my master's in IFLU मैम right now. मैम, इधर मराठी और हिंदी वो अच्छा अच्छा अच्छा, होगा। ओके ओके, ठीक है। मैं आ रही थी उस पे थोड़ा। सो मैं अभी मेरा मास्टर्स कर रही हूँ इफ्लू हैदराबाद से। और थैंक यू सो मच सर, शाहू पाटोळे सर, आपको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी बात सुनने में। सो मैं पहले मराठी में पूछ देती हूँ और फिर चैट में इंग्लिश में भेज दूंगी मैं क्वेश्चन मेरा। इज दैट ओके? या ओके. सो मला असं विचारायचं होतं सर, की तुम्ही म्हणालेला ना आधी, की तुम्ही 60s आणि 70sचं दलित लिटरेचर पण वाचलेलं आहे. आणि माझ्या कोर्ससाठी मी पण आता वाचत होते. सो मी काही नामदेव ढसाल, बाबूराव बागुल आणि अण्णाभाऊ साठेचे काही पुस्तकं वाचली आहेत. पुस्तकं, शॉर्ट स्टोरीज वगैरे.
सो त्याच्यात असं जास्त मला असं तुम्ही आता दलित किचन्स लिटरली तुमच्या बुकच्या टायटलमध्ये आहे. सो किचनचं असं जास्त असं एक्सप्लेनेशन नव्हतं दिलेलं त्या शॉर्ट स्टोरीज किंवा पुस्तकांमध्ये. एकच मिनिट शोध, एकच मिनिट हा. हां. हे तिघं दलित साहित्यिक आहेत, पण त्याच्यामध्ये खाद्याचे उल्लेख नाही. हॅलो. सॉरी तुमचा आवाज तुटला. हा, ढसाळ, अण्णाभाऊ साठे आणि बाबूराव बागुल हे दलित साहित्यिक आहेत, बरं का. पण त्यांच्या हां. लिटरेचर मध्ये, उनके लिटरेचर में दलित फूड के बारे में कुछ भी नहीं है. नहीं, नहीं, नॉट नो, 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। मैं बोल रही थी कि मेंशन है बट ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है। हाँ, इसमें तो लिखा है मैंने, तराळ हाँ, अंतराळ हाँ, में सो मेरा क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। हाँ, जी जी. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो लिटरेचर 60s एंड 70s में लिखा गया है उससे बहुत सारे अदर लिटरेचर्स ने, कंटेम्पररी लिटरेचर्स ने इंस्पिरेशन लिया है। सो उन सारे लिटरेचर्स में जो जेंडर बेस्ड किचन है, मतलब सगळ्यात जास्त बायका जिथे सगळ्यात जास्त वापर करतात किचनचा, त्या त्याचं जास्त असं उल्लेखन नाही आहे त्यांच्या स्टोरीजमध्ये. आणि आत्ताही म्हणजे जास्त मेनस्ट्रीम आपण बघायला गेलो तर जास्त बायकांबद्दल लिहिलेलं गेलं नाही आहे. इवन फिल्म्समध्ये थोडं-थोडं मेन्शन आहे, बट किचन म्हणजे कसं आपण ट्रेडिशनल कन्झर्व्हेटिव्ह सेन्समध्ये आपण विचार करतो, की अरे हा तर बायकांचा डोमेन आहे. तर दलित बायका इकडे अदृश्य होतात का ह्या जिनिऑलॉजीमध्ये? इज व्हॉट इज माय क्वेश्चन. बोलू का तभी. हां, बोला ना. हाँ, ऐसा है कि दलित लिटरेचर 80s तक का मैंने पूरा पढ़ लिया है, 80s 90 85 तक का. ओके. उसमें जसं की काट्यावरची पोटं आहे, तराळ अंतराळार आहे 2 भागामध्ये, किंवा बलुता आहे, उपरा आहे, उचल्या आहे, अक्रमाशी आहे, मतलब गावकी आहे, देदान सुटेगिरान आहे. ओके. खूप पुस्तक आहेत, खूप पुस्तकं. सगळी मी का वाचली, क्यों पढ़ी मैंने, क्योंकि मुझे वो ढूंढना था कि इन सब किताबों में अनाज के उल्लेख हैं, नॉन वेज वेज के, उसका उन्होंने किसी ने डिटेलिंग नहीं किया है, तो वो मुझे करना पड़ा, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, इसलिए ये बुक जो है मैं डिटेलिंग किया है, क्योंकि बचपन से या, मैं जानता हूं कि ये क्या होता है. ओके. फर्स्ट थिंग. या. और दूसरा जो आप मतलब ढसाळ और बाबूराव बागुल हो या फिर अन्ना बसोटी हो, उनके इसमें एक नहीं है खाने के बारे में. ओके. कविता में कुछ ढसाळ जी की कविताओं में कुछ उल्लेख आते हैं, लेकिन वो जस्ट आके चले जाते हैं. तो मैंने ये डिटेलिंग उन्होंने किया नहीं, इसलिए मुझे बुक लिखनी पड़ी, पहली बात तो ये है. सेकंड थिंग, ये जो मैंने लिखा है, आप जो बोल रही है कि ये सब लेडीज ही है वहां पे, जेंट्स तब खाना बनाते थे जब कोई रिचुअल्स है, जब कंदुरी है किंवा कारण आहे, जसे की कारणात रेडा कापता, बफेलो, मेल बफेलो काटते काटते हैं ना. यस, यस. जितने रिचुअल्स थे, रिचुअल्स का खाना तो जेंट्स बनाते थे, लेकिन उसमें और एक चीज थी, रिचुअल्स में पहले लेडीज खाना खाती खाती है, बाद में जेंट्स खाना खाते थे. ये भी एक सेकंड, मतलब ये है. और दूसरा, जैसे कोई हड़के हड़वाड्यामध्ये जानवर लेके जाना है हमारा, वो तो वहां वहां लेडीज, वो सब जेंट्स का काम था. लेडीज का काम पकाना था, उसका वो तोड़ ताड़ करने का काम लेडीज का नहीं था. मतलब वो जब हं, खटखुट मराठी में हम कहते हैं उसको. तो हं. जो आपने जो क्वेश्चन किया वो सही बात है. आपको मैं पूरी लिस्ट भेज सकता हूँ कि कौन से बुक्स में क्या क्या चीजें आई है. उसके बाद कोंकण में ये जो दलित फूड मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि दलित फूड का मतलब है कि जहाँ बड़े जानवरों का मीट, वो भी मरा हुआ खाया जाता था, जिन जिन कास्ट लादा हुआ था, हं, हं. उसको मैं दलित फूड कहता हूँ. आप समझ गए ना. या, या. तो उसको मैं दलित फूड कहता हूँ. और दूसरी बात, और दूसरा उसका मेरा मत यह है कि जिनके घर का खाना कभी किसी ने खाया ही नहीं, वो भी दलित फूड है, ओके. टेस्ट भी नहीं किया.
और तीसरा डेफिनेशन है मेरा कि जिनको अपर कास्ट से नीचे खाना परोस के आता था, वो भी बासी, मैक्सिमम 90% बचा हुआ खाना, वो जिनको देते थे, वो भी दलितों के लिए है, वो भी खराब होता था, तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता था, वो भी एक बात है ना। ये तीन चीजें मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, हाँ। ओके, ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है। मानसी जी का क्वेश्चन है। मानसी इज, हाँ, मानसी जो है तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश बेस्ड है इस टाइम। उनका सवाल ये है कि ये जो जेंडर डिफरेंस या जेंडर बाउंड्रीज है, मेन वर्सेस विमेन वाला, उसको आपने अपनी राइटिंग में कैसे ट्रांसेंड किया, उसको कैसे सरपास किया है? क्योंकि आपने अपनी बुक में बहुत डिटेल्ड में उसकी एनालिसिस करके बताया है, तो उस पे वो चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं बात वो बात पूछेगी वो, या मैं बात करूँ? या आप प्लीज। देखिए, ये फूड है ना, फूड कल्चर, ये डिपेंड करता है भूगोल, आप कहाँ रहते हैं, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, अवेलेबिलिटीज क्या है। आजकल तो देखिए, अभी तो बहुत सारा, मतलब जैसे कि मुझे हमेशा हमेशा प्रश्न पड़ता है कि घाट पर, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहां नमक कहाँ से आया होगा, खोपरा कहाँ से आया होगा, ड्राई कोकोनट, मसाले कैसे आया होगा, किसने लाया होगी, कुछ तो चीज होगी कि जो आया होगा। तो ये मैं पहले, इसलिए सभी कास्ट के लिए, मैं सिर्फ एक दलित के लिए इसको नहीं कहूँ, मतलब सभी कास्ट में खाना बनाने का काम सिर्फ लेडीज का ही है। हाँ, ईंधन से लेकर पानी लाना है, बच्चों को संभालना है, कपड़े धोने हैं, खेत में काम भी करना है, सब कुछ उसको करना है, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक। तो किसी का भी अलग खाना नहीं था, कुछ कुछ चीजें छोड़ के। इसलिए किस सीजन में क्या अवेलेबल है, उसी का खाना बनता था। किसी के पास खेती थी, किसी के पास, हम लोगों के पास, मैक्सिमम के पास खेती नहीं थी, फार्मिंग नहीं था, किसी का मजदूरी करनी, खाना सेम बन रहा है। लेकिन लेडीज का जो काम है वो खाना बनाना तो है ही। सुबह उठ के चक्की पे आटा, ज्वार पीसना है, उसके बाद खेत से आते आते ईंधन लेके आना है, पानी लाना है, बच्चे भी सब कुछ उसको ही करना है। इसलिए हमारे यहाँ पे सूखी सब्जियां नहीं है हमारे खाने में, क्योंकि ज्वार का आटा जो होता है, ज्वार की रोटी होती है, उसको लिक्विड बहुत चाहिए, उसको करी कहते हैं, उसको स्मैश कर खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे पतली सब्जियां ज्यादा है, सूखी सब्जियां नहीं है। क्योंकि सूखी सब्जियां करना चेन, क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको उसको सूखी सब्जी को हम लोग यहाँ पे, एक बाजार कहीं जा रहा है गाँव को वगैरह, तो उतनी मिलती थी। बाकी हमारे ट्रेडिशन में सूखी सब्जियां बिल्कुल नहीं के बराबर। और फूड कल्चर बनता है जो से बनता है, मौसम कौन सा होता है उससे बनता है। आपके यहाँ बारिश कब होती है वो भी उससे बनता है, विंटर में भी बनता है। और अभी जो हमारे यहाँ पे उसको एक वर्ड है मराठी में, वाळवण बोलते हैं। अभी बारिश के लिए 4 महीने के, 3 महीने के लिए अभी से कुछ ड्राई ड्राई बना के रखते हैं। जैसे कि वो बैंगन है तो उसको काट के रखते हैं, उसके बाद कुछ दालें इकट्ठा करके उस सांड के, उसको वड़े बोलते हैं, वो बना के रखते हैं। क्योंकि 3 माह सब्जियां नहीं मिलती, आजकल मिल रही है वो, लेकिन आज भी वो ट्रेडिशन चल रहा है। तो एक एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और उन्होंने पूछा है, मानसी जी के द्वारा ही सवाल है, कि पहले जो दलित कम्युनिटी होती थी वो कैसे आइडेंटिफाई करती थी कि ये चीज एडिबल है, इसको खाया जा सकता है, और ये चीज जो है तो नहीं खाया जा सकता। क्योंकि चैलेंजेस दोनों साइड था, रिस्क दोनों साइड था। एक तरफ हंगर से बचना था, भूख की जो मार होती उससे बचना है। दूसरी तरफ जो फूड की टॉक्सिटी है, कि कहीं उनको फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इससे
तो उसका रिकॉग्निशन वो कैसे पहचानते थे, कैसे आइडेंटिफाई करते थे? हाँ, वो तो देखिए, सब्जी क्या होता है, मेथी है, पालक है, या क्या सब्जी होता है, वो घासी है ना, वो भी तो जी सर। वो घासी है। हम उसका नाम रख दिया हमने, ये गाजर है, ये मूली है, ये मेथी है, ये पालक है, या भिंडी है। कई लोग मरे होंगे खाने से, नहीं। तो इसमें से मतलब कई लोग मर गए होंगे ना, ये फिर पता तो लगा कि ये जहरीला है, अच्छा नहीं है। या सिर्फ जो हम्म। जो घास बकरा खाता है वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे पचता नहीं है ना पेट में जाके। ये इन्वेंशन सब लेडीज और जेंट्स ने किया होगा ना उस काल पे, जब भी हुआ होगा। सेकंड थिंग, जैसे कोई जानवर जहर से मरा हुआ है, बड़ा जानवर, गाय भैंस बैल जो भी हो, वो दीजिए था, उसका पेट खोलने के बाद में अगर इंटेस्टाइन काला पड़ गया है तो उसको नहीं खाना है। उसमें सांप ने काट लिया तो भी नहीं खाना है। समझ आता था कि ये इसकी बू भी आ रही है और ये काला पड़ा है, तो नहीं खाते, पता चलता था बस। यस। सो एक क्वेश्चन रूनी शर्मा का है, बट रूनी शर्मा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या आप डॉक्यूमेंटेशन के इफर्ट को किस तरह समझना चाह रहे हैं, वो बात है, या कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं? प्लीज आप अपने आप को जी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते नहीं, हैं, रूनी समझा शर्मा। नहीं। हाँ, यस सर, रूनी शर्मा। रूनी शर्मा बोलिए। प्लीज। यस सर। सर पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना हम लोग को बताया दलित फूड कल्चर के बारे में। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बात कर रहे थे कि दलित के जो कुछ फूड्स हैं, सर्टेन फूड्स, उसके साथ एक शेम और सीक्रेसी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब हम लोग ये शेम और सीक्रेसी जब दलित कम्युनिटी अपने अंदर इंटरनलाइज करता है, तो जब आप अपने बुक में इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे थे, या फिर आगे हम लोग भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे, और अगर हम लोग सर्वे करना चाहे या फिर फील्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो इसमें ये शेम और सीक्रेसी जो है ये किस तरह से एक बाधा के रूप में काम कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी जो यंगर जनरेशन है उसमें आपने इस चीज़ को लेके क्या चेंज देखा है उनके एटीट्यूड में। आ, अब सर्वे कर आपको जवाब नहीं मिलेंगे, सर्वे करेंगे तो दलित से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जितने पढ़े लिखे यस। ऑफिसर होंगे वो तो बताएंगे ना आपको, बोले कि भागो यहाँ से, हमारे पास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ। और गांव के लोग, अगर आप बात करने के चले जाओगे, 2-4 दिन रहोगे, खाओगे पियोगे, तो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। अगर हाथ में पेन और डायरी लेके जाएंगे ना, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। सेकंड थिंग, बाधा तो वहां पे आएगी। दूसरा, आपका एक आउट क्वेश्चन में थोड़ा भूल गया, कोई बात नहीं, आपको मैं उसको क्लियर कर वो दूंगा। जनरेशनल शिफ्ट कैसे आ रहा था, कि आज की जो जनरेशन है उसको कैसे हाँ, टैकल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हाँ, फैसले आ वो सकते है। हैं? गांव की जो जनरेशन है, गांव की, आज भी मैं गांव में जाकर रहता हूँ, गांव में रहता हूँ मैं मैक्सिमम। गांव के जी। बच्चे जो है दलित के, आपसे बात ही नहीं करेंगे। वो मैगी ला के खाएंगे, 5 रुपए का मैगी पास्ता भी खा रहे हैं आजकल। वो नहीं बताएंगे आपको। वो भी आजकल वो बलून भी आ गए हैं, वो भी हैप्पी बर्थडे करेंगे वहां पे, लेकिन ये नहीं खाएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं आपको शर्म में। और मेरी जो, मतलब मैं ऑफिसर था अभी, जो जैसे कि क्लास ऑफिसर, तो मेरे बच्चे हैं, उनको पता नहीं था हमारा बाप क्या खाता था, मेरे बच्चों को। अभी मेरा बेटा, वो एकदम एक्साइट होकर खा रहा है कि अरे ऐसा भी था क्या, मतलब वो वो कास्ट नहीं देख रहा है, वो पैशन बोल के खा रहा है वो। जैसे पिज्जा खाता था ना वो पहले, या मेरी बेटी तो लंदन में पढ़ती है, मतलब नौकर जॉब करती है। उसको पता नहीं हम क्या खाते थे, क्यों घर पे कभी लाया नहीं मैंने। मैं अकेला खाता था, बीवी खाने नहीं देती थी बच्चों को। अच्छा नहीं होता है वो, उससे दिमाग काम नहीं करता है, जानते हैं आप ये? बफ खाने से दिमाग काम नहीं करता है, भेजे पे चर्बी चढ़ जाता है, इसलिए वो दिमाग काम नहीं करता है। क्योंकि मैं ऑफिसर बना, वो खा खा के तो वो किसी को पता ही नहीं है। वो बात चल अपार्ट जो, लेकिन जो शहर में रहने वाले दलित बच्चे हैं,
जिनके माँ बाप एजुकेटेड हैं, वो बच्चे क्यों खा रहे हैं, उनको बच्चों को दिखाना कि देखो हम क्या खाते हैं। उनके साथ उनके फ्रेंड भी खाते हैं, किसी भी कास्ट के हो। ये क्योंकि मेरे बच्चे भी बताते हैं और वो फोटो डाल देते हैं, पापा आज हम गए थे, हमने खलिया खा लिया, नान खा लिया, और कुछ कलेजी भी खा ली, और कुछ ये मतलब खिचड़ा भी खा लिया। और मतलब इसका ये अभी बताने के लिए बच्चे, मैं पहले बोल चुका हूँ आपसे मैं कि ये जो अमित जी ने पूछा था ना, वो ईस्टर टैंक खा रहे हैं लोग वगैरह, महंगा हो गया है फूड, गरीब का फूड महंगा हो गया, वो फोटो के लिए और कुछ अलग खाने दिखाने के लिए हो रहा है। इसके पीछे उसका जी टेस्ट का मामला बहुत कम है। आप जी देखिए किसी होटल में, वो जो अमित जी जो कह रहे थे बार बार कि वहां पे वो मतलब जो चीजें बहुत सस्ती थी वो महंगी हो गई है। जो प्रॉपर जो मीट था वो मतलब उसी रेंज में है, लेकिन आपको जो कुछ चाहिए, पाया पाया खाना है आपको, तो पाया को आपको दुगना तिगना रेट देना पड़ेगा। कलेजी खानी है, एपिकोटिस खानी है, इंस्टेंट खाना है, तो वो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा कर दिया है। और गरीब आदमी का जो खाना जो सस्ते वाला था, जिसमें ज्यादा प्रोटीन थे, उसको दुर्लभ कर दिया है हिंदी में हमसे। बुचर्स को बोलते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं मिलेगा आपको, आप ये है तो मीट लेके जाओ, ना तो मत खाइए। और मुर्गी जो जी। है तो जो पहले सर अमित जी, पहले क्या था, मतलब नियर अबाउट 80-90 तक देसी मुर्गा महंगा था, बकरे का मटन सस्ता था। जब से पोल्ट्री आना शुरू हो गया ना, पोल्ट्री आने से क्या हो गया है कि चिकन इतना सस्ता हो गया है, लेकिन वो जो पोल्ट्री वाला चिकन है वो लाइव पनीर ही है। वो पनीर में और चिकन के टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, आप देख लीजिए। आप उसको दोनों से उसको मैं लाइव पनीर बोल देता हूँ। कोई टेस्ट नहीं उसमें, प्रोटीन है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप फिर पनीर खाइए या फिर मुर्गी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। मसाला मैटर करता है। सर एक सवाल कमलेश कुमार एक स्कॉलर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिलोसफी डिपार्टमेंट से। इन्होंने सवाल पूछा है कि वो हिस्ट्री में कौन सा ऐसा दौर रहा जब दलित लोग इस तरह के सड़े गले मांस खाने को मजबूर हुए थे। ऐसा कोई रेफरेंसिंग या फिर कुछ आप बता पाए तो अच्छा होगा सर। हालांकि अंडरस्टूड है, हो सकता है। अरे अरे हमारा कोई कहीं पे क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। हाँ लेकिन ये अ, अगर आप नहीं नहीं आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, आपको संत वैष्णव लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। वैष्णव लिटरेचर। वैष्णव मराठी 52 संत है, 52 संत है, उसको पढ़ो आप, तो फिर उसमें आएगा सात्विक क्या होता है, राजस क्या होता है, और अम, सात्विक राजस और तामसिक आहार। हम लोग तामसिक है भाई, आपको मिलेगा तो ये सर। ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो पूरा। या स्मृति जी क्वेश्चन पूछना चाह रही मैं। स्मृति यू आर अलाउड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। स्मृति इज हियर। I think Smriti is not here. He left, I think. There is another question. Anu wanted to ask. Yeah, Anu, please unmute yourself and ask your question. जय भीम सर, माझं नाव अनु आहे आणि मी मूळची उस्मानाबादची. तर माझ्या पंजे जे होते तर त्यांच्याकडून मी ऐकत होते की तुम्ही त्याच्यावर बोलले होते, जसं की हॅलो. बोला, मी उस्मानाबादचा, बोला बोला, मी उस्मानाबादचा आहे. हो हो सर, हो सर.
तर मी फक्त ऐकलं होतं रक्तीबद्दल, पायाबद्दल, वजडीबद्दल किंवा करडईबद्दल. पण तुम्ही ते हा. एकदम लिहून म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ बुक तुम्ही प्रेझेंट केलं तर खूप छान वाटतंय. आणि तुमची जी जर्नी होती फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफिसर टू जर्नल टू ऑथर, तर ते तुम्ही कसं म्हणजे कसं काय तुम्ही इन्स्पायर झाले हे लिहिण्यामध्ये? आणि दुसरा प्रश्न होता हा, की बरोबर, बोला बोला. ज्या स्त्रिया होत्या तर त्या ओव्या गात गात दळण दळायच्या. तर मग तसं दलितांचं काही इतिहास नाही भेटत आपल्याला, किंवा आता पण जसं आपण बोललात की फूड दलित फूड इज कॉस्टलियर, वे कॉस्टलियर. तर ह्याला काही पॉलिटिकल अँगल आहे का, म्हणजे इतिहासात आणि आता? आणि आपल्या दलितांच्या जेवणाचं असं काही म्हणजे बिरबलची खिचडी आपण बोलतो, तर असं काही दलितांचं नाहीये. तर ह्याला काही आहे का कारण? नाही, दोन बरं का, तुम्ही तुम्ही एकाच एक बोलू का आता मी? हो सर, हो सर, प्लीज. तुमचं झालं का? ओके. हा. तुम्ही जे आता उल्लेख केले रक्ती, वजडी आणि ह्याचे ना, ते अजून पण मिळतं बरं का. आत्ताही मिळतं. ऐकताय का? हा, हो सर, ओके. हो सर, हो. आजही ते मिळतं ना, मिळत नाही असं नाही. फक्त लोक खाल्ल्याला सांगत नाही, तेवढाच फरक आहे. ओके. आज भी मिलता है वही, वो सब कुछ मिलता है आज भी, लेकिन लोग बताते नहीं है, ये प्रॉब्लम. सेकंड थिंग, करडेचे तेल आता करडे अजूनही मिळते, खूप बहुत महंगा है करडी का तेल. सैफ्लॉर, सफोला सफोला जो तेल आता है ना, सबसे महंगी चीज है वो. जो अभी मतलब अभी मीन्स नियर अबाउट 80s तक गांव में लेडीज जो चक्की पे आटा पीसती थी सुबह उठ के, उस पर जो गाना गाती थी त्याला ओव्या म्हणायचे, बराबर ना? वो भी क्या होता है, वो भी अच्छी नहीं होती है, वो दुख का गाना होता है. उसको मैं कल्चरल गीत नहीं बोलता हूँ. मेरा 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 थिंकिंग है ये. क्योंकि वो जबरदस्त था कि वो जब पीसना है तो वो आगे पीछे होना पड़ता था, तो वो दर्द को भूलने के लिए गाने गाए जाते थे. वो कोई कल्चरल फॉर्म नहीं था. वो भी शोषण के गीत है. वो भी है, वो शोषण के गीत है. उसको मैं आनंद के गीत नहीं मानता हूँ. ये मेरा खुद का थॉट है. अच्छा, इतिहास में तो कहीं है ही नहीं है. अगर आप ढूंढना है तो आपको सेंट कल्चर जो है वैष्णव, आपको वहां जाके उसको पढ़ना पड़ेगा. वहां आपको हमारा दलित फूड वहां पे मिलेगा आपको. मतलब क्या नहीं खाते, जो क्या खाते हैं वो नहीं मिलेगा. क्या नहीं खाना है वो मिलेगा. सात्विक आहार क्यों क्यों लेना चाहिए, ये लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी मीन्स उसके बारे में कुछ लिखा, जैसे कि भागवत और वैदिक धर्म के ज्ञानेश्वरी में भी थ्री टाइप्स ऑफ फूड दिया है. एक है सात्विक, सेकंड है राजस. इसके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है पूरा. लेकिन तामसिक जो है, जो थर्ड जो वर्ण है, मतलब अपने यहाँ पे फूड जो है कैटेगरी. कल्चर में, वो तीन टाइप का है. त्रिवर्णिक फूड है. तो सात्विक के बारे में कुछ भी खाते हैं, बचा हुआ खाते हैं, बासी खाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है. इतना ही है. और फिर वो आगे तक अपने पढ़ा कि जो जिस टाइप का फूड खाता है वैसी उसकी रुचि बनती है, उसका चार्ट वैसे बनता है. ये तो लिखा हुआ है. बोलिए. So, तर काही सिमिलॅरिटीज आहेत का मराठवाड्याच्या जेवणात आणि बाकीच्या स्टेटच्या जेवणामध्ये? आय मीन टू आस्क दॅट इज देयर एनी सिमिलॅरिटी लाईक? नॉर्दर्न मराठवाडा, तेलंगणा, नॉर्दर्न कर्नाटका, खानदेश, some part of Telangana, north, some maximum part of Telangana, नॉर्दर्न कर्नाटका, भालकी पासून सगळं असं ते बसव कल्याण आणि हे सभी वो नॉर्दर्न कर्नाटका पूरा. जैसे कि जहां जहां येळ अमावस्या मानली जाते. आपको माहित आहे येळ अमावस्या? येळ अमावस्या सण माहित आहे का? नाही. अश्मक प्रदेश माहित आहे का? अश्मक प्रदेश, यु नो अश्मक प्रदेश? नाही सर. गोदावरीच्या खाली आणि कृष्णेच्या वर अश्मक प्रदेश आहे. लिहून ठेवा तुम्ही म्हटलं. अश्मक प्रदेश.
आम्ही सगळे अश्मक प्रदेशातले आहोत आणि अश्मक प्रदेश में जो उत्सव है जहां अमावस्या भी पवित्र होती है, तो ये अश्मक प्रदेश के लोग फूड कल्चर सेम है. नॉर्दर्न कर्नाटका, देन भालकी, बसव कल्याण, उदगीर, सगळा हा सब ये जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ का फूड कल्चर सेम. लैंग्वेज अलग है, खेती करना भी सेम है, फूड कल्चर सेम, फूड कल्चर. So, Smriti, are you there? Are you present? You can ask your question. You wanted to ask something, I guess. Sir, sorry, but I think Smriti left the. And sir, No, sir, I am here. Actually, my Yeah. phone got discharged and I was trying to connect it, and I just shifted to a new phone, so I was not understanding क्या हो रहा है इसमें. So may I ask one question to sir, if you allow? Yeah, please go ahead. Yeah, please go ahead. Okay. Sir, we are extremely thankful to you. आपने स्मृति, बहुत ही स्मृति. बढ़िया. Yes, sir. स्मृति एक मिनट मैं भी जरा पानी पी लेता हूँ. हाँ, मैं जरा Sure, sir. सुन रहा Sure, sir. मतलब ओके बोल कोई बात नहीं. बोलिए ना, बोलिए. अच्छा, ओके सर. सर मैं आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सुन रहा हूँ. हाँ, सिर्फ मैं वहां से उठा हूँ जगह से. बोलिए आप. हाँ जी सर मैं ये बोलिए ना, पूछ रही थी सर कि जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि और अमित ने भी जो सवाल किया और जो बढ़िया सवाल था कि अभी जो दलित फूड है वही सबसे महंगा हो रहा है और आप उसको आर्काइव कर रहे हैं अपने उसमें जो बहुत हाँ जी सर. सिर्फ दलित हाँ जी का सर. फूड नहीं महंगा हो रहा है, जितने बहुजन थे ना उनका महंगा हो रहा है, हमारा अकेले का नहीं हो रहा है. तो वही मैं कह रही हूँ सर कि जैसे जिस फूड को हम बुरा मान रहे हैं, आपका कहना है कि अपर कास्ट जो, और आपका नहीं, ये स्थापित चीज है कि अपर कास्ट उसको बुरा मान रहे हैं और उसको लेकर एक वो बना और बाइनरी बनाया गया और बाद में व्यवस्था उसमें बन गई और लोग वही खाने लगे और फिर बाद में अभी जो हो रहा है उसका उल्टा चल रहा है. एक तरफ सर आप देखो जो अभी का समय चल रहा है, जो एक तरह के फूड को मोदी जी दलित फूड को सेलिब्रेट करवा रहे हैं और उसको महंगा कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक मिलेट. दूसरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक बार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, शायद आप पूरी बात सुने तो आपको समझ में आएगा सर. और दूसरी तरफ सर वही सरकार में, उसी रिजीम में सर जो हमारा नॉनवेज है, एक तरफ उसका दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको खाने में लोग मर रहे हैं, है ना. तो मुझे, और उनको मारा जा रहा है और वहीं से पोलराइजेशन रिलीजन का जो भी है वो तो बहुत ज्यादा बात हो रहा है उसके ऊपर. तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि सर ये जो पूंजीवाद और फूड का जो रिलेशन बना, फूड और पूंजीवाद का जो रिलेशन बना सर, उससे क्या दलित फूड का आइडेंटिटी पे, दलित फूड कल्चर क्या सर उससे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ? क्या उसको अपवर्ड मोबिलिटी मिला या फिर वो कैपिटल और मतलब पूंजी और दलित फूड का एक पूंजीवादीकरण हो गया? और उससे जो आप जैसे जो सर आपका किताब है, मुझे लगता है वो सांस्कृतिक जो अंतर है अपर कास्ट और दलित फूड का, उसको ब्रीच करने के लिए बना और अपना एक हिस्ट्री, डोमिनेंट हिस्ट्री और नॉलेज बनाने के लिए बना कि दलित फूड का भी जानकारी हो और पता चले कि ये कितना रिच कल्चर था. तो लेकिन इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य अगर सांस्कृतिक अंतर को खत्म करना है तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतने सर, आप कैसे देखते हैं कि जब इसका पूंजीवादीकरण हो रहा है दलित फूड का भी, तो उससे इस सांस्कृतिक अंतर को खत्म करने में कोई मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपर कास्ट और दलित फूड का खत्म कर, जो सांस्कृतिक डिफरेंस है फूड कल्चर का, और उसका जो भी रीजन है, डोमिनेंस है, एक्सप्लॉइटेशन है, एट्रोसिटीज है, लेकिन ये पूंजीवादीकरण से इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? पूंजीवादीकरण से हम इसका पॉजिटिव, एक तो महंगा हो गया, तो जो दलित का फूड था वो भी दलित को नहीं मिल रहा है, आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्या जो एक फूड का कल्चर का डिफरेंस
अभी जो हमारा अभी कंटेम्प्रेरी रिजीम जो बना के रखना चाहता है, एक तरफ उसको हाईलाइट कर रहा है, दूसरी तरफ उसको बना के रखना चाहता है। सर इस पैराडॉक्स से कैसे डील करेंगे? थैंक देखिए, यू सर, एक तरफ थैंक यू सर। बोलूं मैं? ओके। जो गांव में है ना, सिर्फ दलित और वो मतलब क्या कहते हैं उसको, अपर कास्ट, थोड़ा अपर कास्ट, इतने डिफरेंस है भी। सबका एक कुछ कुछ फूड छोड़ के सबका फूड एक जैसा ही है। इंसेस्टाइन्स है या ब्लड है, वो सभी लोग खाते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली दलित खाते थे। वो एकदम से उसको कुछ हाईलाइट करके बहुत महंगा हो गया है। किसी के गांव का फूड जो है, जो जैसे मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स तो सब लोग खाते थे। बट जो गरीब का था उसको महंगा कर दिया है। और ये जो अभी महंगा होने से क्या हो गया, लोग जो फ्री में फूड मिल रहा है ना रेशन पे, वो खा रहे हैं और मिलेट्स बेच रहे हैं। ये बहुत एक अलग से फंडा हो गया है बिजनेस में। सेकंड थिंग, आपने कैपिटलिज्म की बात की ना, ये इससे ये प्रॉब्लम ये हो गया है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा उसको मैं, सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जो लोग अपना खुद का अनाज खाते थे, वो उनसे वो दूर है। क्योंकि देखिए, जैसे घर में गाय है या भैंस है, उसका दूध लोग डेयरी में डालेंगे और आते आते 10 रुपए का दूध का पैकेट ले आएंगे, बच्चों को भी नहीं पिलाएंगे। यहां तक अभी नौबत आ चुकी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत कम हो गया है। अच्छा, आपने और कुछ मतलब थोड़ा मैं, बोलिए आप श्रुति जी। ये कह रही थी हेलो। कि तो हाँ सर, मैं ये कह रही थी, ये दो बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहे कि पैसा इतना बड़ा हो गया कि अपने बच्चे को भी गाय का दूध नहीं पिला रहे हैं, उसको पैकेट का दूध पिला के गाय का दूध बेच रहे हैं और 10 रुपया का पैकेट ला रहे हैं। तो ये तो पूरा सर इकोनॉमिक क्राइसिस और जैसे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें कास्ट डिफरेंस भी नहीं है उसमें सब पे, और जो चूंकि लोअर कास्ट इज लोअर क्लास ऑल्सो इन दिस कंट्री, तो वो उस पर ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन सर मैं जो एक और बात इंपॉर्टेंट कहना चाह रही थी, जब आपका जैसे काम है सर, जब आप दलित फूड को लेके, मैंने किताब नहीं पढ़ा है और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको एक्सेस करूं और पढ़ पाऊं, लेकिन जैसा मुझे बातचीत से लग रहा है सर कि आपका दलित फूड को आपने हिस्टोरिसाइज किया, उसका आर्काइविंग किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉक्यूमेंटेशन करने का एक जो मुझे अमित ने भी कहा, और ये कि वो एक पैरेलल आपने नॉलेज क्रिएट करने का कोशिश किया कि ये भी नॉलेज है, और आपने जो उसको, तो सर इस नॉलेज के क्रिएशन से ये जो अल्टरनेटिव नॉलेज और जो डोमिनेंट नॉलेज था जो अपर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन से अल्टरनेटिव नॉलेज में बन गया, उसको आप वापस ला रहे हैं। तो इससे सर एक बात ये होगा कि दलित फूड यही था, तो दलित फूड तुम खाओ, तुम दलित का फूड को दलितों का ही फूड खाना चाहिए, ये बाइनरी बना। दूसरा तरफ इसका एक बड़ा उद्देश्य ये होगा कि अपर जो कास्ट हायरार्की फूड में है वो खत्म होगा और सबको लगेगा कि ये अच्छा फूड है और ये सबको खाना है। तो उससे जो हमारा अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक सांस्कृतिक अंतर क्रिएट किया गया, उस पर हमला होगा सर। तो आपका आपका सर क्या उद्देश्य है ये डॉक्यूमेंटेशन का, कि आप उस कास्ट बाइनरी को तोड़ना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, या फिर दलितों के बीच में इसको पॉपुलर करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि ये अपर कास्ट को समझ में भी आए कि ये फूड है, ये भी सबसे ऑर्गेनिक और इम्पोर्टेंट फूड है, और जो उनको नहीं उनको खाना ही चाहिए, वो उसको मिस कर रहा है, उसको उसने हिस्टोरिकली उसको पहले वंचित समुदाय में डाला, उसके बाद उसको वो मिस कर रहे हैं। तो ये आपका सर थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कास्ट को खत्म करना है और फूड को कल्चर के बारे में बात करके, या क्या करना है? कास्ट कहाँ खत्म होने वाली है? नहीं होने वाली। फर्स्ट थिंग, क्योंकि अभी जो सेंसस चल रहा है, कास्ट सेंसस, अभी जो ये लोक संख्या का, वहां तो लोग बोल रहे हैं कि कास्ट लिखना चाहिए। तो कास्ट कैसे जाएगा नाम पे? ये थोड़ा डिफरेंट एंगल है मेरा। और दूसरा, कोई फूड दलित फूड नहीं होता है। इसको किसी ने लेबल लगा दिया है कि, जैसे मैंने भी लगाया, लेकिन ये दलित फूड नहीं है, ये सबका फूड था। उसमें कुछ सिर्फ बीफ और बग छोड़ के जो यही बात मैं सबका कहना चाह फूड। रही थी सर, जो अभी आपके बात से आ गया, यही बात मैं सुनना चाह रही थी कि ये लेबलिंग जो ये बहुत बढ़िया, ये आपने बोल दिया, ये मुझे बहुत खुशी हुआ जान के कि सबका फूड था ये, इसको बहुत सिस्टमैटिकली नीचे डाला गया। हाँ, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर।
फूड 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 मैटर नहीं करता है, आपकी कास्ट मैटर करती है, किस घर में कौन सा खाना बन रहा है। किचन की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरी दादी सब्जी लेके आती है, कोई कच्ची रॉ या अनाज लेके आती है, वो किसी को देती है अपर कास्ट को, तो वो दलित फूड नहीं है, उसके लिए अनटचेबल नहीं है वो। जब पकता है ना, तो वो टचेबल अनटचेबल हो जाता है। यस सर, यस सर, यस सर। मेरे किचन में कुछ बन रहा है गांव में आज भी, तो वो मेरे बिल्कुल नजदीकी कास्ट है, जैसे कि बेलीती है या चमार या मोची है, तो वो मेरे यहाँ के नहीं खाएंगे। वो मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ओके सर, ओके सर। अब कौन से किचन में खाना बन रहा है, किसके, सेम फूड है गांव में। देखिए, सब मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं, मैक्सिमम लोग आज भी उसी अवस्था में रहते हैं। सबके घर में बारिश में वही सब्जियां आती है, वही अनाज है, वही ज्वार है, वही बाजरा है, सब कुछ वही है। किसके घर में पकता है, किस कास्ट में खाना पकाया जाता है ना, एग्जैक्टली। वहां पे डिपेंड कि अब ये फूड दलित का है या फूड मराठा का है या फूड किसी और का है। अच्छा, मैंने एक डेफिनेशन बनाया मेरे खुद का कि अपने भारत में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, भारत की मैं बात नहीं करूंगा, कि जहां पे जिस किचन में हींग खाते हैं ना, हींग हींग क्या कहते हैं उसको, सैफोडिल है ना, क्या बोलते हैं उसको, हींग हींग, जिनके किचन में हींग होता है, हाँ, घी घी, यस सर। सैफोडिल का कुछ है ना उसका वो। नहीं, घी ही बोलते हैं सर, घी घी। हाँ, हाँ तो अपने यहाँ पे दो दो फूड कल्चर्स है, सीधे सीधे, हींग खाने वाले और हींग नहीं खाने वाले। हाँ हाँ। तो हम हींग खाने, मतलब मैक्सिमम लोग हींग नहीं खाने वाले। वो सिंपल डेफिनेशन है। हींग आता कहाँ से है? पर्शिया से आता है, ईरान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। तो हम तो ले ले सकते, तो वहां नहीं जा सकते। वो सिंपल डेफिनेशन है ना ये तो। गांव का खाना जो है, सिर्फ अब वही आपको बार बार बता रहा हूँ कि होटल में जाने के बाद खाना कौन बना रहा है वो छोड़ दी, लेकिन गांव में अगर किस किचन में, किसके कौन से कास्ट के किचन में खाना बन रहा है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। फिर वो बनता है, ये नहीं खाएंगे, ये सबका खाने एक जैसा ही है, मैं उसमें कोई डेफिनेशन नहीं करता हूँ। तो थैंक यू सर फॉर योर काइंड एलैबोरेशन। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा एक्सटेंशन इसी बात को लेकर के है जो स्मृति जी पूछ रही हैं, और मेरा आपका जो नंबर आंसर है मैं उसको। एक रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर सबको दे दीजिए, तो अगर वो मुझे उनको कुछ या भी देखिए, सामने सामने बात करना अलग होता है और ऑनलाइन बात करना अलग होता है। मैं ओके, सो I request Professor Gopani ji please type this contact number of Sahu sir, so that the other audience can attend or ask directly मेरा question if there are. फोन के बजाय मेरा ईमेल आईडी दे दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है, Okay, मेरा नाम है शाहू पाटोड़े @gmail.com, वो भी उनको दीजिए, तो वहां मुझे और ज्यादा कंफर्टेबल है। okay sir, okay sir. It's Sahu Patole. @gmail.com, शाहू पाटोड़े, मेरा नाम सीधा नीचे लिखना, कुछ नहीं। या मैंने इसको चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Okay, so if there are no questions and any clarifications, we will try to conclude. And I should also see Rajashree Goody. She was also working for a long time. राजश्री है क्या? Yeah. अरे उसने So, कुछ बोला ही नहीं उसने। yeah. Rajashree, would you like to? Hey, hello. Yeah, I'm please. listening. I've been listening and just listening to all the questions. Please add
So we will be. It Oh will no, be I feel like all the experts are here. I don't know what is wrong with my background screen. Sorry. Wait, maybe I can turn it like this. Yeah. I I didn't put this background screen. Hello, hi sir, how are you? ये पॉसिबल था अभी 7 तारीख को बंगलोर मिलेंगे बंगलोर में Oh, Bhetare. Yes, we'll meet in Bangalore. Yes. No, actually, I maybe short question, but आप शर्म के बारे में बोल रहे थे, and I think that is a key. I think a key place. Yeah, just a key word in our vocabulary, in our language when we talk about food, when we talk about culture. Um, could you speak a little bit more? I mean, I know it's been a long time, but just about the relationship of shame or sharam, uh, and how even if people's food habits are changing, लोगों के खाने के म्हणजे habits change होतात ते तरी पण a caste might never go away. अगदी Sorry, अगदी my बरोबर आहे हो. नाही नाही इट्स ओके मला कळलं हॅलो and I आज तो understand. हिंदी everything खिचड़ी. ओके 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 न्यू जनरेशन है ना न्यू जनरेशन अभी जो जो न्यू जनरेशन है शहर में वो कोई मायने रखते नहीं है ओके सम अप प्लीज Yeah. So Rajashri, she has been writing small pieces, and she also her work is available on the internet. So she's the one. I met her long back in America in one of the conference, and when she raised a question on food, I felt like, oh, people are also working on food. Long back in 2016 or so. And good to see her in this meeting. So it was very, 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 very enriching, productive discussion. First of all, we thank you, sir, for accepting our invitation and sharing your experiences. It really helping new generation of scholars to focus on this area, bring new dimensions. So we are very thankful on behalf of Satyashodak Academics. Now I formally invite Devashish to conclude, propose the vote of thanks. Thank you so much, sir. Hello, sir. Thank you so much, Dr. Saul Patole, for coming and join us here. Actually, we are doing this lecture series quite some time, something around 3 to 4 months. But everyone was talking about what is Dalit food culture, how are you doing? And whenever we are talking to every intellectual, so they were telling us, ki, do read Sao Patole's book. So this was the starting point, and now we are hearing you something around 2 hours. It is very fruitful, and we were expecting ki what will be going to happen, what will learn from you. But it is clear that ki, the clarity and conviction which you showed to how there's no shame, there's no secrecy, and it is important to come out. And you are the first one, Devashish, you are the Devashish. earliest one who put forward this work, and we feel ki will continue your work, and we'll see a new scholarship which you paved the way. And especially I will thanks to all the listener who were there and here for their questions, and it was very fruitful question answering. So thank you to all for being here, and it's been like it's
8 o'clock. So thank you so much, and a very good night, all of you, and especially Dr. Sav Patel. Thank you so much, sir. Thank you, sir. But I'm not doctor. I'm not doctor. Thanks for clarification, sir. Doctor. So in the chat box there are so many thanks messages. चैट बॉक्स में बहुत सारे थैंक्स मैसेज आ रहे हैं, तो आपको रियली तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बहुत प्रॉम्प्टली आंसर दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम बहुत आभारी हैं सर आपके इस काम को लेकर के, आपकी इस मतलब जिस तरह से आपकी हॉस्पिटैलिटी है। जैसे मैं बोल रहा था कि आप केवल एक स्कॉलर ही नहीं बल्कि एक पैशनेट और कम पैशनेट वॉइस निकल के आ रहे हैं, बन के आ रहे हैं इस टाइम में, ये बहुत अच्छा है सर। सो थैंक यू सो मच सर, एंड डेफिनेटली हम लोगों को कभी अगर मौका मिलता है तो फ्यूचर हम फिर से कोलैबोरेट करेंगे। सो इसी के साथ मैं और एक बात और अनाउंस करना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि वी आर नाउ कंक्लूडिंग दिस सेशन फॉर्मली, but in near future we